السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے ایران سے جنگ کے بعد خلیجی ممالک کے گرد امریکی دفاعی حصار کمزور پڑ گیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین نے امریکی اڈوں کی میزبانی ترک کرنے پر غور شروع کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق نئے ممالک نے متبادل انتظامات بھی ڈھونڈنے کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ ہوئے سب سے پہلے خبر ہے مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر وزیر اعظم کا نام فائنل کر لیا۔ اعلان لیگی صدر نواز شریف کل کریں گے۔ مری میں ہونے والی اہم بیٹھک میں مخصوص اور اوورسیز نشستوں کے نام بھی فائنل کر لیے گئے ہیں۔ حکومت سازی کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل بھی دے دی گئی۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ آزاد جموں کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مری میں نون لیگ کی اہم بیٹھک میں نام فائنل کر لیے گئے۔ حکومت سازی کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل بھی دے دی گئی۔ مخصوص اور اوورسیز نشستوں کے نام بھی فائنل کر لیے گئے۔ وزیر اعظم سمیت تمام ناموں کا اعلان نواز شریف کل خود کریں گے۔ ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی کے مقامی صدر شاہ غلام قادر اس وقت سب سے مضبوط ترین امیدوار سمجھے جا رہے ہیں۔ تاہم جنرل سیکرٹری طارق فاروق اور کرنل ریٹائرڈ وقار نور کے ناموں پر بھی سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے سہرش قمر، مریم کشمیری، ناصرہ خان اور نثار عباسی مضبوط امیدوار ہیں۔ اوورسیز کی ایک نشست کے لیے حاجی احسان دانش، عبد الرحمان ارائی، راجہ وسیم اور راجہ جاوید اقبال کے ناموں پر مشاورت کی گئی۔ 9 روز کی ہڑتال کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت میں آخر کار مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ کراچی میں وفاقی وزیر مواصلات اور گورنر سندھ کے ساتھ مذاکرات کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال 40 روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز نے تمام مسائل حل ہونے کی امید بھی ظاہر کر دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کی ہڑتال کا 9واں روز کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور گورنر سندھ نہال ہاشمی کے ساتھ بیٹھک میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد شہزاد اوان نے ہڑتال 40 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ تمام وہ ڈیمانڈ جو صوبائی اور وفاقی حکومت سے ہماری تھیں، کچھ مسائل ہمارے فوری طور پہ ان کی طرف سے حل کر دیے گئے، تو تقریباً ہمارے جو ایشوز تھے فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی حکومتوں سے، وہ مطالبات کسی حد تک تسلیم ہو چکے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یومیہ تبدیلی سے متعلق فیصلے کے لیے حکومت نے 15 دن کی مہلت لے لی۔ ٹول ٹیکس کمی کے حوالے سے بھی کمیٹی بنا دی گئی۔ گڈ ٹرانسپورٹرز الائنس حکام کے مطابق احتجاج کے باعث ملکی معیشت کو اب تک 50 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ناگزیر ہے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے۔ ایس ڈی پی آئی کی زیر اہتمام قومی سطح پر مباحثے میں معروف تاجر میاں عامر محمود، نور عالم خان اور دیگر نے شرکت کی۔ مقررین اور ماہرین نے کہا گورننس کی بہتری کے لیے مزید انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ اختیارات کی تقسیم سے عوام کو حقوق ملیں گے۔ سی ایم نے اعلان کیا کہ ہم آزاد کشمیر میں 5000 لیپ ٹاپ دیں گے۔ اس سے پہلے پنجاب بلوچستان میں ہاسپٹل بنا رہے ہیں اور دوسرے صوبوں میں پنجاب خرچ کر رہے ہیں۔ ریسورسز اگر آپ کل پھر پروونس ہم جب باتیں کرتے ہیں اسمالر پروونسز کی تو یا اسمالر یونٹس کی تو what do we say? We simply divide one bureaucracy into two. So ہم اگر صوبوں کی بات کرتے ہیں so how do we bring government closer to the citizens جن کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری خواہش سے زیادہ اب یہ پاکستان کی مجبوری ہے۔ کس طرح مجبوری ہے؟ اب آپ مثال کے طور پہ بلوچستان کو لے لیں۔ بلوچستان کا ایک ایم این اے کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ آپ چلنا شروع کریں تو ایک دن آپ کو لگ جائے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں پہنچنے پہ۔ کی قیادت نے ایک بار پھر نئے صوبوں کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے زور دیا کہ ملک کی آبادی 25 کروڑ ہو چکی ہے۔ ملک میں ڈویژن تو بنا دیے گئے لیکن صوبے نہیں بنائے گئے۔ کراچی کی آبادی صوبہ سندھ کی آبادی کا 38% ہے۔ کراچی کو دنیا کے بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ بنا دیا۔ یقین دہانی کرائی کہ نئے صوبے کا مطالبہ سندھیوں کے خلاف نہیں بلکہ سندھیوں کے حق میں ہے۔ مطالبہ پورا ہوا تو ہاریوں کو بھی آزادی ملے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی قیادت نئے صوبے کے معاملے پر ہم آواز ہو گئی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ متحدہ قومی موومنٹ نے نئے صوبوں کی ضروریات پر زور دیا۔ ہم کہہ رہے ہیں جہاں آبادی کے لحاظ سے پاکستان بھر میں صوبے بننے چاہیے اور اس لحاظ سے سندھ کے اندر مزید صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔
MKM के मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने यकीन दहानी कराई कि उनका मुतालबा सिंध के देही आवाम के लिए मुफीद है। 1 इंच ज़मीन भी जो है वो सिंध की किसी और सूबे में दाखिल नहीं हो रही, कोई 1 इंच किसी दूसरे सूबे के सिंध के अंदर दाखिल नहीं की जा रही। ये तकसीम नहीं है। ये जो तकसीम की बात हो रही है कि ये तकसीम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने बावर कराया कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम मज़ीद इंतज़ामी इकाइयों के बगैर नामुमकिन है। सिंधी भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और बेटियों के लिए मेरा सिर्फ ये कहना है, उनका असल दुश्मन सिंध का वडेरा और जागीरदार, वो ख़ानदान है जो मौरूसी सियासत कर रहे हैं। मुत्तहदा की क़यादत का कहना था कि सिंध का असल दुश्मन वडेरा, जागीरदार और मौरूसी सियासत करने वाला है। मुल्क चलाने वालों को भी समझ आ गया है कि नई इंतज़ामी इकाइयों के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वेलकम बैक। अमरीका ईरान जंग के खात्मे में मौसर सिफारतकारी में नाकामी पर खलीजी इत्तेहादी ममालिक अमरीका से मायूस होने लगे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अरब, यूरोपीय और अमरीकी अहदेदारों के हवाले से दावा किया है सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब ट्रंप इंतज़ामिया के तर्ज अमल पर बेचैनी का शिकार हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई खलीजी ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी फ़ौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने या ना रखने पर भी गौर शुरू कर दिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक बाज़ ममालिक नए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर गौर कर रहे हैं और कुछ ममालिक ने अपने मुतबादिल रास्ते भी तलाश करना शुरू कर दिए हैं। ईरान ने आबना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईरान के मुहाफिज आपकी टांगें तोड़ देंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि अमरीकी अफवाज को अमलन यहाँ से निकाल दिया गया है और अब उन्हें खलीज बहर-ए-ओमान या आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। मेजर जनरल अमीर हातमी ने मज़ीद कहा कि ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को दोबारा उनकी साबका पोजीशन में वापस लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को नई रफ्तार देने के लिए तुर्किया के तारीख़ी शहर इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किदा बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉन्फ्रेंस और एक्सीलेंस अवार्ड्स में पाकिस्तान से तिजारती वफ़द ने शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम, इस्तांबुल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अरकान और आला तर्क शख्सियात समेत दोनों ममालिक की कारोबारी बरादरी के सरकर्दा रहनुमा शरीक हुए। ताजिरों और बिलखुसूस उभरती हुई नौजवान कारोबारी शख्सियात को एक्सीलेंस अवार्ड्स पेश किए गए। जमात इस्लामी ने कराची, लाहौर और पेशावर में पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ धरने दे दिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने लाहौर में धरने से खिताब में कहा कि हुकूमत के घुटने टेकने तक धरने जारी रहेंगे। उन्होंने हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी मुस्तरद कर दी और वाज़ेह किया कि हुकूमत की कोई ब्रीफिंग नहीं चाहिए, बात सिर्फ एक चीज़ पर होगी कि पेट्रोलियम लेवी वापस लो। मुल्क के चारों सूबों में बैक वक्त धरनों का आगाज किया जाएगा। लाहौर में ये धरना CM हाउस पे होगा, बाकी 3 सूबों में गवर्नर हाउसेस पे होगा। अगर इन्होंने कोई खिलवाड़ करने की कोशिश की तो भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल की कीमत कम करने की ये तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाए। वो लेवी जो वैसे ही नाजायज है, भत्ता है, जगह टैक्स है, उस लेवी का अपना हदफ भी हुकूमत ने क्रॉस कर लिया और खुश हो रहे हैं कि हमने हदफ से ज्यादा भत्ता वसूल कर लिया। हमने हदफ तो लिया था लोगों पे जेबों पे डाका डालने का 1468 अरब रुपए, हमने 1567 अरब रुपए का डाका मार दिया। तो जो आम आदमी है उससे तो आप टैक्स जबरदस्ती वसूल कर लेते हैं, लेकिन जो इलीट क्लास है साल में 17 अरब डॉलर का बेनिफिट दिया जाता है मुख्तलिफ लोगों को आउट ऑफ द वे। 225 रुपए पेट्रोलियम की कीमत की जाए। जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर में पेट्रोलियम लेवी टैक्स के खिलाफ एहतजाज जारी है। कराची में भी जमात इस्लामी के कारकुनान ने गवर्नर हाउस के करीब धरना दे रखा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साद शरीफ भी मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। साद, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ ये एहतजाजी धरना है तकरीबन पिछले 4 घंटे से जारी है और जमात इस्लामी की आज पूरे कराची के मुख्तलिफ अजला से निकाली गई जो रैलियाँ थी, तमाम रैलियाँ जो है वो एक जगह पर जमा हुई। कराची प्रेस क्लब के करीब मस्जिद खिजरा है, सबसे पहले वहाँ पर जमा हुए, नमाज असर अदा की, जिसके बाद गवर्नर हाउस की तरफ रैली के लिए जो है वो मार्च निकाला गया। और जब यहाँ पर पहुँचे तो गवर्नर हाउस के जो अतराफ़ी जो सड़कें हैं वहाँ पर कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया था। इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ अजला के जो सरबराहान हैं
हैं वो यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं और यहाँ पर कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो है कराची के जो जमात इस्लामी के अमीर हैं मीनम जफ़र वो भी गुफ्तगू कर रहे थे और अब से कुछ देर बाद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है हाफिज़ नईम साहब भी यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे आकब में आपको नज़र आ रहा होगा कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त जो है वो धरना देकर बैठ गए हैं सड़क के ऊपर और ये रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। जो रोड गवर्नर हाउस से PIDC की तरफ जा रही है सड़क को बंद कर दिया गया है, जबकि जो ट्रैफिक की डाइवर्शन है उसको अगर बात कर ली जाए जो गवर्नर हाउस से शारे फैसल से जो मेट्रोपोल से ट्रैफिक आता है मेट्रोपोल से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके अब जो है प्रेस क्लब चौरंगी से साथ ही साथ जो भेजा जा रहा है वो ज़ैना मार्केट की तरफ भेजा जा रहा है। अगर बात कर ली जाए इस धरने के हवाले से तो इस धरने का जो मकसद बताया जा रहा है वो ख़ासतौर पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें कमी के लिए हुकूमत से अपील की जा रही है, हुकूमत से मुतालबात किए जा रहे हैं और जो लेवी टैक्स है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की बात की जा रही है। यहाँ पर जो जितने सरबराहान हैं जितने मुख्तलिफ अजला के जो चेयरमैन यहाँ पर मौजूद है जमात इस्लामी के उनकी तरफ से जब स्पीच की गई तो यही कहा गया कि जो पेट्रोल लेवी पे जो टैक्स दिया जा रहा है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया, जो आवाम का जो मैंडेट है वो उन तक पहुँचाया जाए, जो हुकूक कराची वालों को नहीं मिल रहे उनके ऊपर बात की जा रही है। फिर उन हुकूक में चाहे पानी की बात हो या फिर गैस की बात हो या फिर शहर के टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर कराची के नौजवानों की नौकरी की बात हो, इन तमाम जो मसाइल हैं उनके ऊपर यहाँ पर गुफ्तगू की जा रही है और यहाँ पर शदीद नारेबाजी की जा रही है, नगमे पढ़े जा रहे हैं और अभी भी आप मेरे आकब में देख सकते हैं कि इस वक्त एक स्पीच जब खत्म होती है राजधानी का गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी है। मुल्क भर में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी ने धरने का फैसला किया था। साद शरीफ हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने जमात इस्लामी का धरना जारी है। धरने में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान सूबाई क़यादत समेत कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल अब्बासी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क की तरह लाहौर में भी जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जो है वो एहतजाजी धरना जारी है। लाहौर की चेयरिंग क्रॉस पर जो है कल जमात इस्लामी के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने आपसे कुछ देर पहले कारकुनान से खिताब किया और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने हुकूमत की जो महंगाई के हवाले से पॉलिसीज़ हैं और पेट्रोलियम मसनूआत और स्पेशली जो लेवी टैक्स है इस पर खासी कड़ी तनकीद की और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि जब तक लेवी टैक्स ख़त्म नहीं किया जाता जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ कारकुनों की भी जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई है और कारकुनान का यही कहना है कि जब तक हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स का खात्मा नहीं करती एहतजाजी धरना जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।